Morning, dear all students. I am Samir. I am a computer teacher for your class. Today's our topic is using mail merge. Students, mail merge के चैप्टर को समझने के लिए हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेल मर्ज एंड हाउ टू क्रिएट ए मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स. Students, now we will discuss about the using of mail merge and introduction of mail merge. So first is, what do you mean by mail merge and what is the use of mail merge? So students, mail merge is a powerful tool for writing a personalized letter or email to many people at the same time. It imports data from another source such as Excel and then uses that to replace placeholder throughout the message with the relevant information for each individual that is beginning message. Students, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस, हम किसी भी प्लेस या होम मेट या फिर किसी फंक्शन में हम मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और बिजनेस कैंडिडेट को हम लेटर सेंड करते हैं, इनवेलप सेंड करते हैं, इनविटेशन सेंड करते हैं एंड लेटर सेंड करते हैं. इन सभी प्रोसेस को का जो मेन डिज़ाइन होता है वो सेम होता है, बट हमारा रिसिपेंट लिस्ट, मीन फ्रेंड की लिस्ट एंड कैंडिडेट की लिस्ट एंड एड्रेसेस ये डिफरेंट होते हैं. तो इन सभी प्रोसेस को समझने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है. सो नाउ स्टूडेंट, बिफोर you start your training, run through the mail merge process. You need to understand the two documents that make up mail merge. The mail merge process, just generally you can see this slide and images. The first is mail merge part, main documents. What is the main document? Generally student, हम इसे 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं. Within MS Word, create a new document, start from templates, use an existing document. Create a new document means generally we can easily create with the table function, table and formatting and different type of text applied to the main document. And another way is हम directly template को access कर सकते हैं, जो कि आपके प्री-डिफाइंड रेडीमेड डेटा होते हैं, जस्ट लाइक इज इनवेलप, लेटर, ये प्री डिफाइंड आपके MS वर्ड एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड यूज़ एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा होगा सेव करके, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेन डॉक्यूमेंट. दिस इज़ द एक्चुअल डॉक्यूमेंट दैट यू आर द प्रोड्यूसिंग. इट कैन बी ए फॉर्म, letter, email message, envelope, label or directory. The main document contain the text and formatting that say the same for each copy of the letter, as well as merge field, which are placeholders that tell what there to insert individual pieces of information from the data source. Means मेन डॉक्यूमेंट के ऐसे प्लेस को जहाँ पर हमें रिसिपेंट लिस्ट, एड्रेस, नेम एंड डेटा को फिल करना होता है, उसकी प्लेस को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिसके जहाँ पर हम डेटा सोर्स के थ्रू जो भी आपके रिसिपेंट लिस्ट, एड्रेस, इंफॉर्मेशन होंगी वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड स्टूडेंट की, हम उसे एक्सेस कर सकें. सो नेक्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स डेटा सोर्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. डेटा सोर्स जनरली वी आर क्रिएट in 4 way within MS Word, word processing software, and then second is Microsoft Excel, and third is Outlook application and text file. So students, the meaning of data source is, this is the file that contain the data you will merge into the main document. It is organized into a record, one of each recipient. Each record is composed of individual field for specific pieces of information such as a first name, last name, address and so on. If you create your data source during the mail merge process,
Word can also use data source in many other formats, include Access, Excel, other database format programs, Word table, text file, and more. Just like you can see this headings. आप इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि मेल मर्ज के स्टेप में ही हम डायरेक्टली 3 वेज एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड टेम्पलेट्स को एक्सेस करके भी हम डेटा सोर्स को एक्सेस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस डेटा सोर्स विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. आप एक्सेल में ये टेबल देख पा रहे हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लिस्ट, कॉपी ऑफ द सिटी, स्टेट एंड जिप कोड. ये सारे के सारे आपके पास फील्ड हैं. जो वर्टिकल पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट दैट इज नोन एज ए फील्ड, एंड देन हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल दैट इज नोन एज ए रिकॉर्ड. आप पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखते हो, ए रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ए रिलेटेड फील्ड्स ग्रुप बाय रो. And second, a field name is a column heading, just like as a first name, last name and company name. And a field is a single piece of data from a record to be used in a source document. So students, आपने main document and data source को easily यहाँ पर समझ लिया है. But main document and mailing list को जब हम या data source को जब हम mix करते हैं तो आपका perform होता है मेल मर्ज प्रोसेस, जिसके थ्रू आप मेन डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रिसिपेंट लिस्ट और मल्टीपल एड्रेस पर वन टाइम एट ए टाइम हम सेंड कर सकते हैं. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मेल मर्ज. तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टर्म पर हम इसके प्रैक्टिकल एंड स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.